Good evening, ladies and gentlemen. While the world hails India as an ambassador of peace, are there enemies within who are weaponizing rumors to burn the nation? On the one hand, Modi diplomacy has won over even the staunchest of critics like Congress's Shashi Tharoor. Be it Russia or Ukraine, India, the peace snake, is embraced by all. On the other hand, you have a fake news rumor mill with an आग लगा देंगे template chronology. समझिए आप, समझ रहे हैं ना? Incite, mobilize and then strike. This toolkit to anarchy was seen in Kashmir, Sambhal, Mao and now in Nagpur. After the night of violence where arson, vandalism and pelting ripped apart the fabric of peace, the larger conspiracy is now being decoded. Why did the violence start 4 hours after the protest by the VHP and Bajrang Dal against Aurangzeb? How were hundreds of people mobilized within hours? If the intent was to protest peacefully, why were the rioters armed to kill? Was this anarchy pre-planned? Sample this. The Cyber Department deleted 800 social media posts for spreading fake news, inciting one community. At least 70 URLs were used to spread old or fabricated videos which rapidly went viral. ATS suspects that this was just like the Kashmir formula, where within hours, rumors are spread, pelters are mobilized and riots are started. But it's not just inciters. Even opposition leaders were peddling fake news with inflammatory speeches. At Jantar Mantar, anti-Waqf protesters roared, "We are ready to give blood." After the Nagpur clashes, AIMIM chief Asaduddin Owaisi said that holy verses were insulted. But now, Chief Minister Devendra Fadnavis has fact-checked the video circulated and confirmed that no religion was insulted, no holy text had been touched. Yesterday on the News Hour, we told you about the pattern to provocation. Today, let's show you how fake news was used as ammunition to incite. Watch this. सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। काही लोकांनी हा जाणीवपूर्वक केलेला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। कारण जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही ती घडलेली आहे. Is it a coincidence that the homes and cars in Ram Mandir Gali were targeted? Even the DCP who was attacked with an axe said one community targeted him. Now let's show you the inciter-in-chief in action. Watch how Fahim Khan, part of a political outfit called the Minority Democratic Party, allegedly mobilized 400 to 500 people with the intention to riot. The next video is from the night of the violence, where Fahim Shamim Khan led a group of people to the police station, stood outside and incited the crowd with slogans. The FIR filed against him says that the mob was armed and chanted insightful slogans. Watch this. पुलिस वालों ने लाठीचार्ज सिर्फ एक पक्ष के ऊपर किया। आज यहाँ पे हमारे को जो है डीसीपी और एसीपी साहब ने जो है आश्वासन दिया कि, और वो हमेशा आश्वासन वाला लॉलीपॉप मिलता है हमारे को, जिसको हम बोलते हैं। अभी हमने वही बात की है कि आप कल बुलाओगे, उसको एक नोटिस देंगे और 2 घंटे के बाद में उसको सलाम दुआ कर देंगे, फिर उसकी डेयरिंग बढ़ जाएंगी और फिर यही काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जो है अपने हक के लिए खुद आवाज उठा लेंगी।
Not only did they incite in front of a police station, cops were singled out and targeted. Unfortunately, they even preyed upon women officers. Times Now has accessed a complaint by a lady constable who has alleged that rioters tried to rip off her uniform and touched her inappropriately. Even the Kotwali ACP, Anita More, was attacked by the mob of pelters. You can see these visuals of her bleeding profusely. So the incitement is on camera and the fakery has been fact-checked. Yet the opposition leaders continue to provoke. For the RJD, BJP is not digging the grave of Aurangzeb but digging the grave for India. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav quips that BJP has turned these riots into an opportunity. Instead of messages of peace and harmony, watch how Vipaksh spews poison. जहां कहीं भी इस तरह का दंगा होगा, भारतीय जनता पार्टी उससे लाभ लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर सब कुछ होता है। वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। वो औरंगजेब महाराष्ट्र के खिलाफ, छत्रपति शिवराय, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ जो महाराष्ट्र में आए थे, वो वापस आगरा नहीं जा सके। तो आप 400 साल पुरानी बात आप निकाल रहे हैं तो निकालो। देश में कोई भी दंगा और उसकी पड़ताल होगी, यही लोग नजर आएंगे। मैंने कहा ना, औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की आप कोशिश कर रहे हैं। So ladies and gentlemen, the Motorola legitimate question we are asking on the News Hour tonight. Who weaponized fear and fakery? That's the question and the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. On the News Hour tonight, Dr. Sudhanshu Trivedi, National Spokesperson and Rajya Sabha Member of Parliament of the BJP, faces Varis Pathan, National Spokesperson of the AIMIM, and also on the show, Anand Dubey, Spokesperson of the Shiv Sena Uddhav Thackeray Group. Varis Pathan bhai, tonight I want to ask you this. Those who were pelting stones, those who were attacking policemen, those who were outraging the modesty of women officers were all from one community, had been incited, and there was absolutely no truth to the charge made by Owaisi Saab, where he said that the holy text of the minorities of a community had been desecrated. Tonight, I ask you this. After Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra, has stated on the floor of the assembly in Maharashtra, what will your party do? What will your leader do? Should he apologize to the nation for giving life to the same rumors that created these riots in the first place? Well, Navika, the BJP's ministers and their provocative statements are responsible for whatever happened in Nagpur. Just prior 2 days to the Nagpur incident that happened, the MLA of BJP from Hyderabad, Raja Singh, came to Pune and he gave a provocative statement. Why did the police not take any action against him? Why no FIR were registered against him? Violence is condemnable. We condemn all kind of violence. Nobody has a right to take law into their own hands. We condemn it. Whosoever is responsible, the police is there to take care of it. But why this happened? The BJP wants to divert the attention of the nation from the main issues. Now today, people have forgotten. One MLA of the SP have given them an opportunity. Since last 70 days in Maharashtra, everywhere in the country, people are only talking about Aurangzeb. 400 years back, whatever happened, what we have to do, what does the Indian Muslims got to do with Aurangzeb? I say, Sudhanshu Trivedi ji, okay, come, let us go dig up the grave, take it away. By digging up the grave, will the economy of our country increase? Will the 2 crore unemployed youth get employment? Will the share market, which has gone down, will it rise? Will we have a $1 trillion economy? No. So why do you want to divert the mind of the nation from the basic issue? And now coming to your point that you said that one video was there. Navika, can I show you the viral video which is on
the social media and everywhere people are watching it. If you want to see, I can just play the video for you. It is just with me right now. And I don't say I was not present there, no, you were present, but this video is viral. So on the basis of this video, viral video that has not been vouched for by the police, I'm not putting on a national channel. So please do not show anything that is not fact-checked, Waris Pathan. Otherwise, you will be responsible for any impact that it has. Because this has been fact-checked by Fadnavis ji. But you will only believe yourself and never anything that is anything to do with the truth. Dr. Sudhanshu Trivedi, please respond. Okay, you believe Fadnavis. Just 10 seconds, I will complete my point. Just yesterday, Fadnavis on the floor of the assembly said that Chhawa film is responsible for the Nagpur violence because there is a lot of hatred against Aurangzeb after Chhawa film. Now his Deputy Chief Minister, Shinde ji, what did he say? People must go and watch Chhawa if they want to learn history. Now, this is not contradictory. You want to create a hatred. You are telling people to go and watch Chhawa. What are they? Are these not provocative statements? What steps has the government taken to ensure that they restrain themselves? So the statement of the film is being compared to the statement of the holy text being burnt, and that is the parallel that is being drawn. Sudhanshu Trivedi ji, please respond. Actually, what Waris Pathan is saying seems very amusing, astonishing, and sometimes ridiculous logic. He's saying, yes, today in the 21st century, in the age of AI, why we are talking about Aurangzeb? I would like to remind to the viewers of your channel that it was his party's MLA and the brother of his party's chief, Akbaruddin Owaisi, has said, 800 साल हमने इस मुल्क पे हुकूमत की. What do we mean by 800 साल हुकूमत की? Who was going back in the history 800 years? ये ताजमहल किसके बाप ने बनवाया? लाल किला किसके बाप ने बनवाया? हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया? Who was bringing this? This is the same pattern even in this recent episode. Who has brought? Abu Azmi of Samajwadi Party, then Imran Masood of Congress Party, then Rashid Alvi of the Congress Party, then who went to Aurangzeb's grave and has cited a Fatiha, Imran Pratapgarhi of Congress Party. What you are talking about, sir? That is the premise. The problem is fake history, fake narrative, fake concept, fake ideology, fake identity, and fake videos. These are the basic fundamental premise which is trying to divert this country. And on the issue of movie, I would like to say to your viewers, there were several Oscar-winning movies have been made on the atrocities against Jews by the Germans. Schindler's List, Saving Private Ryan. Has any German felt offended? No. Then why in Chhawa the Muslims are getting offended? If just it is a matter of 80 years back, none of the Germans says that he is representing the ethos of Adolf Hitler, Hermann Göring, Rudolf Eichmann, or Rudolf Hess or Adolf Eichmann. Then how come Muslim of the today gets connected with Babar, Tughlaq and Aurangzeb? They fight for the so-called Babri Masjid, then in Kashi Vishwanath on Aurangzeb issue, and now on the Chhawa film on Aurangzeb issue. This is a very, you can say, very diseased mindset, which has engulfed the Muslim psyche. And it is our duty, the collective duty of all the political class, to take the Muslim psyche out of this. Otherwise, these type of incidences will keep on happening. Whether it is happening in Nagpur, I would like to remind, it is the same Maharashtra. In 2012, the Azad Maidan episode, when Amar Jawan Jyoti was discarded. Why? Because there was a social media post that was saying that these are the bodies of the Rohingya Muslims killed in Burma. And that was also fake. The true picture was these were the bodies of those who killed in cyclone in Thailand. Even if it would have been the Rohingyas' dead bodies in Myanmar, what was the connection of distorting and damaging the Amar Jawan Jyoti in Mumbai? What was the pretext? And several OB vans were shattered, broken, and nobody said that it was an attack on media, because there was a secular government in that. In Lucknow, Buddha Park, Bhagwan Buddha's statue was damaged. Bhagwan Mahavir's statue was damaged. Why it was happening? And today in Nagpur, I would like to say, from attacking to policemen to unnecessary provoking the communities, I think this is a set pattern
which is to be addressed. और वारिस पठान भाई, आप लोगों के मुंह से तो वैसे भी शोभा नहीं देता, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो देख लेंगे, 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ जाएगा. आई थिंक पीपुल और फिर जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय पे चले जाएंगे, ये तो आपके आला हजरत असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? मुझे लगता है कि now allow me to make my point. Now we can allow me rebuttal, please. Problem is the mindset, Waris Pathan sahab. Problem is not Aurangzeb. Problem is the mindset that you are propagating. Yeah. Now Sudhanshu ji just now gave a 10-minute speech and he named few films and movies saying that those were movies that were released but nothing happened there. Sudhanshu ji failed to take the name of Devendra Fadnavis, the Chief Minister of Maharashtra. He said on the floor of the Assembly that Chhawa film is responsible for the hatred against the Aurangzeb or whatever is happening in Maharashtra. Why don't you say that there was a provocative statement? And his deputy, when he says that people must go and watch the movie to learn history, is it not inciting? It is not provocating. One of the persons said the other person, because of that this thing are happening. And the BJP's ministers, every now and then they are coming before the nation and giving provocative statements. There are several FIRs registered against them, Navika. But why are they not yet arrested? Why the BJP let them loose? Okay, you go. Because the BJP is benefited by them. They want to polarize the situation. They want to divert the mind of the nation from the basic issues. Because people are asking them questions. Now what has happened in Maharashtra? The basic questions which the opposition wanted to ask the BJP was the Pune rape case, the law and order deteriorating situation in Maharashtra state. Everything has now gone to shambles. Now 17 days the budget has gone. Now who has helped them? The B team of BJP, Samajwadi Party MLA, he came to their rescue and he's helped them. So today we are facing this. So I say again, the video is in people's domain. We have not manufactured or Waris Pathan, why can't you say a single word on people who were standing in front of the police station and raising slogans that were also provocative? वो आपको नहीं दिखता. आपको सिर्फ बीजेपी का उसमें दोष दिखता है. Are you not going to talk about provocation from both sides? Because FIRs have been registered against Bajrang Dal and VHP as well. But I want to also bring in Anand Dubey ji. Anand Dubey ji, आपने तो कमाल ही कर दी. आपकी पार्टी, एक मिनट वारिस भाई 1 minute. Anand Dubey ji is also Maharashtrian. He also wants to speak on Maharashtra, on Nagpur. Please give him an opportunity. Anand Dubey ji, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने तो कमाल ही कर दी. वो तो कह रहे हैं कि औरंगजेब पे कुछ करना है, करो, हमें फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हिंदू तालिबान आ गया. अब हिंदू तालिबान लगने लग गया है. कौन सी बाला साहब ठाकरे की सोच थी और कौन सी आपकी सोच? ये कहां से कहां आ गए? नाविका जी नमस्ते. पार्टी की सोच भी बताता हूं और पार्टी की बात भी बताता हूं. 17 मार्च को जो दंगा और हिंसा नागपुर में हुआ, उसमें दो तरफ की साइड है. एक तरफ दंगाई खड़े हैं, एक तरफ निर्दोष जनता और घायल पुलिस वाले हैं. हमारी पार्टी निर्दोष जनता और घायल पुलिस वालों के साथ है, दंगाइयों के साथ नहीं है. दूसरी चीज, हम राज्य सरकार से सवाल भी पूछते हैं कि आपके पास गृह विभाग है. गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सौभाग्य से एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी है. वो नागपुर से ही आते हैं. जब आपको पता था कि नागपुर में 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो पुलिस को आपने सतर्क क्यों नहीं रखा? उसके बाद उसी दिन वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन था, पुलिस को और सावधान और सतर्क क्यों नहीं रखा? उसके बाद जब हिंसा शुरू हुई, दंगा शुरू हुआ, तो जब स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने पुलिस बल को मदद के लिए फोन किया, तो 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वो आए. तब तक बहुत सारे दंगाइयों ने उत्पात मचा दिया था. अब इन सारी घटना पर आप सवाल अगर विपक्ष से पूछेंगी तो आपके दर्शक भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है. इसमें अगर जवाबदेही किसी की बनती है तो ये भाजपा सरकार की बनती है, महायुति सरकार की बनती है, जो अपने आप को डबल इंजन का दम भरती है कि हम जब से सत्ता में आए हैं हिंदू बहुत सुरक्षित है, हिंदुओं को अभिमान के साथ चलना चाहिए. उसके बावजूद हमारे हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार नागपुर में क्यों हुआ? क्या इसका कोई संज्ञान लेगा? एक फहीम पकड़ा गया है, उसके साथ 50 दंगाई पकड़े गए हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि वहां पर 700-800 दंगाई थे. इतना बड़ा मॉब था, तो और बाकी लोग कहां छुपे हुए हैं?
उनको कौन बचा रहा है? उनकी सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। वो 700 फहीम कब पकड़े जाएंगे? वो 700 फहीम कब पकड़े जाएंगे? देखिए, आनंद दुबे जी ने जो कहा, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क हिम कैटेगोरिकली व्हेन ही वाज सेइंग कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती में कौन प्रोवोक हो रहा था? When you are saying that the government should have been remain more alert, I want a clear answer and asking the millions of viewers कि शिवाजी महाराज की जयंती से किसकी फीलिंग हर्ट हो रही थी, या उसमें क्या कैसे कहा जा रहा था जिससे किसी की फीलिंग हर्ट हो सकती हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की परंपरा का दावा करते हैं, जिनके जमाने में जब दंगे हुए थे और उनसे पूछा गया था तो यही कांग्रेस के पार्टी थी जिसने बाला साहब ठाकरे जी पे दंगे का आरोप लगाया था। भूल गए सर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट 90s में? और जब बाला साहब ठाकरे से पूछा गया था कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि दंगों में आपका हाथ है, तो बाल ठाकरे जी का क्या जवाब था? बाला साहब जी का जवाब था, मेरा हाथ नहीं पैर है। जिनके पैर की धमक से जिन लोगों की सांसें रुक जाया करती थी, उनके पैरों में आप ऐसे गिर गए कि आप ये सवाल पूछ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज की जयंती। हां, हो सकता है शिवाजी महाराज की जयंती से उन लोगों को बुरा लगा होगा जिनके लिए शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने शिवा बावनी में लिखा है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फैली रब की, और तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले केरे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अब ये सुन के किसी की भावना भड़की हो तो मैं समझ सकता हूं आनंद भाई। अब नविका जी मुझे 10 सेकंड का जवाब बनता है। भावना भड़कना जायज नविका जी 10 सेकंड का मुझे जवाब बनता है। बोलिए बोलिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होती है तो झांकियां निकलती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, पुलिस बल साथ साथ चलती है कि इस कार्यक्रम पर कोई और हानि न पहुंचा दे। उनको सुरक्षा दी जाती है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में वो झांकियों को लाया जाता है, पुलिस सावधान रहती है। उस दिन अगर दंगाई चुनते हैं तो इसका मतलब पुलिस की खुफिया एजेंसी लापरवाह थी, गैर जिम्मेदार थी। हम इस पर सीधा सवाल पूछते हैं कि सरकार क्यों सो रही थी, जब सरकार को मालूम होता है कि साल में यह सबसे बड़ा उत्सव हिंदू भाई बहनों के सबसे बड़े महान नायक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती से जुड़ा है। उस दिन उपद्रवियों ने क्यों चुना? क्या इसकी जानकारी आपको नहीं लेनी चाहिए थी? लेनी चाहिए थी। और आप छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में कसीदे पढ़ रहे। 2016 में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बने, उनकी मूर्ति अरब सागर में लगे, उसके लिए आदरणीय मोदी जी ने, लोग भूमि पूजन करते हैं, उन्होंने जल पूजन किया था। आज 2025 में हम बैठे हैं, 9 साल बीत गए। अरे जल पूजन तो छोड़िए, भूमि पूजन तो छोड़िए, 1 इंच वहां काम शुरू नहीं हुआ और आप अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं आनंद दुबे जी, 800 सोशल मीडिया पोस्ट हटाए गए, 700 यूआरएल्स हटाए गए। इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं तो चौकन्नी थी, लेकिन ये आपको नजर नहीं आ रहा। आपको नजर आ रहा है कि हिंदू तालिबान थे। क्यों सुधांशु जी? अगर पुलिस चौकन्नी होती तो 3 डीसीपी घायल नहीं होते। देखिए, दोनों बातों अगर पुलिस चौकन्नी होती तो 3 डीसीपी घायल नहीं होते, 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल नहीं होते। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, शिवाजी महाराज के प्रति सम्मान जो मोदी जी का है उसको मैं क्लियर बताना चाहता हूं। लास्ट ईयर भारत के इतिहास में पहली बार नौसेना ने अपना रूटीन एनुअल एक्सरसाइज कहां किया? सिंधुदुर्ग में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना का केंद्र था। और सुनिए आनंद भाई, भारत की नौसेना के फ्लैग पर अंग्रेजों के जमाने से कोने में यूनियन जैक बना हुआ था, जो अटल जी की सरकार में हटाया गया, फिर दोबारा रख दिया गया था। उसे हटाकर मोदी जी ने पंचकोणीय मुद्रा जो शिवाजी की समय की थी, उसे भारत की नौसेना के ध्वज पर लाकर स्थापित किया है। यह है हमारा उनके प्रति सम्मान और जो प्रेरणा वो देश को देते हैं युद्ध करने के लिए। अब दूसरी बात, आपने कहा कि क्यों दंगाई ऐसा करने में सफल हो गए। बिल्कुल आपकी बात सही है, जानते क्यों सफल हो गए?
क्योंकि दंगा करने वालों को तो पुलिस पकड़ लेगी, पर उन दंगाइयों को पता है कि उनको पॉलिटिकल कवर फायर देने के लिए औरंगजेब फैन क्लब के लोग भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में बैठे हुए हैं। दो जो औरंगजेब फैन क्लब वाले सिम्फनी गाना शुरू करेंगे बाहर से, उससे उनको बचाव का कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसीलिए आई एम टॉकिंग टू द मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ऑफ योर प्रोग्राम नाविका जी। आप देखिए, इट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम लीडर्स वर स्पीकिंग इन फेवर ऑफ औरंगजेब, अ डास्टर्डली रूथलेस despotic king, but cutting across the party line, Hindu leaders were not standing in favor of even their God, not in favor of Bhagwan Ram. बस ये सोचने का विषय है। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन एक औरंगजेब फैन क्लब है जिसमें पार्टी कोई भी हो, सारे मुस्लिम नेता। वारिस पठान भाई, कौन है ये औरंगजेब फैन क्लब? नाविका जी बोलने वाला एक क्लब है, पार्टी कोई भी हो, बीजेपी एनडीए को छोड़कर सब उसमें शामिल होंगे। नहीं, सुनिए नाविका जी, बात यह है कि बीजेपी ये जो नागपुर में हुआ है, जो वायलेंस हो रही है, इससे अपना पूरी तरह पल्ला झाड़ रही है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी उनकी थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो जवाबदारी में बीजेपी टोटल फेल हो गई है। तो क्या जब वो बोल रहे कि सुनियोजित सोची समझी साजिश थी, प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, तो सीएम क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? सीएम के हाथ में होम मिनिस्ट्री है, सीएम का वो कॉन्स्टिट्यूशन है नागपुर, नितिन गडकरी का घर है वहां पर, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, मतलब तमाम चीज में महाराष्ट्र की सरकार विफल हो गई। तो अब डाल दो औरंगजेब को। औरंगजेब को इन्होंने पोस्टर बॉय बना दिया है। वो पोस्टर बॉय को लेके घूम रहे अपनी गंदी सियासत चमकाने के लिए। 400 साल पुरानी पोस्टर बॉय की मजार पर गया कौन था? वारिस भाई, पोस्टर बॉय की मजार पर गया कौन था? अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं गए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं गए थे वहां चादर चढ़ाने, भूल गए हैं? महिमा मंडल अकबरुद्दीन ओवैसी ने नहीं शुरू की थी। मैं आपने गडकरी जी का नाम लिया, मैं बता दूं, ये फाहिम शमीम खान है कौन? ये माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी है क्या? ये सेम आदमी जो है फहीम खान, ये नितिन गडकरी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है 2024 में। तो इसमें राजनीतिक आई कि नहीं आई? सुधांशु त्रिवेदी जी, वारिस भाई को समझा दीजिए। अरे मेरे को तो बोलने दो ना, मैंने पहले बात ही नहीं किया अभी तक। मैं तो जवाब आप नाविका जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। सुधांशु भाई रुकिए, सुधांशु जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, रुकिए आप। अच्छा बोल लीजिए, 10 सेकंड बोलिए। मुझे नहीं बोलने देंगे आप। सुनिए, जीना की कब्र पे कौन गया था? अडानी। बहादुर शाह जफर की कब्र पे कौन गया था? नरेंद्र मोदी। कल पूना में क्या हो मालूम है? जो विश्व हिंदू बजरंग दल ने जो पोस्टर जलाए ना, किसी ने औरंगजेब का फोटो भी नहीं था, दूसरे का पोस्टर उठा के जला दिया। इतने तो उन लोग को पता नहीं है किसका जलाना है, क्या करना है। और कौन है मुगल? आर्य आडवाणी जी गए थे ना जिना की कब्र। अब सुनो, मुगल से हमको क्या लेना देना? चलिए भारतीय मुसलमान को सुधांशु जी मुझे जवाब दीजिए, हमको औरंगजेब या मुगलों से क्या लेना देना? अब जो 400 साल कुछ लेना देना नहीं है तो मजार पर चादर चढ़ाने, फतिया पढ़ने क्यों जाते हैं? वारिस पठान साहब पहले जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत करिए। अगर कुछ लेना देना नहीं है औरंगजेब से तो कौन गया था वहां? मैं विजुअल्स दिखा देती हूं, अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो तो मैं आपको विजुअल्स दिखा देती हूं। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, अकबरुद्दीन ओवैसी गए नहीं थे वहां पर? ये वारिस भाई को पता नहीं है या भूल गए हैं? खुद भी खड़े थे वहां। गए थे नहीं वारिस पठान साहब, again I am saying that you are shamelessly exposing your own leader. Akbaruddin Owaisi not only has gone to the mazar of Aurangzeb. Waris Pathan Sahab, let me complete. By whose leader has set this world? 800 साल हमने इस मुल्क पे हुकूमत की. It was your party leader Akbaruddin Owaisi, whom he was referring as 800 years old. मुगलों के साथ अपने को कौन जोड़ रहा है? आप तो मुगलों को बाप बना रहे हैं भाई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई कनेक्शन नहीं है आज के जमाने में। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये राष्ट्रपति भवन ने मुगल गार्डन किसने बनाया था? तो आप हिस्ट्री बताओ। ये बताइए, आजादी के बाद इंडिया गेट के चारों तरफ औरंगजेब के पूरे खानदान में सड़कों का नाम किसने रखा? औरंगजेब रोड से 15 शाहजहां रोड, जहांगीर रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड किसने रखा भाई? अरे ब्रिटिशर हो गए तो आप तलवे चाट रहे हो। किसने बनाया था? अरे भैया मुगल जहां से आए थे वहां का बनाया तो मिट्टी का ढेला ना बना पाए, यहाँ आके बना लिया था। अरे गजब बात करते हो मेरे भाई, वो अलग विषय है।
जहां से लाल रेड फोर्ट से, उसमें मत जाइए। रेड फोर्ट से अरे भैया, ताजमहल बनाने वाले जहां दावा करते हैं वहां कोई ताजमहल का टीम तो दिखा दे। बनाया था जैसे अमेरिका आज ये कहता है कि अगर हाई राइज बिल्डिंग अमेरिका ने बनाई तो अमेरिका में सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, अमेरिका में इंस्टीट्यूट है, अमेरिका में टेक्नोलॉजी है, अमेरिका में इंजीनियर है। मेरे भाई ये मुगल जहाज से आए थे, ताजमहल बनाया, ऐसी कोई बिल्डिंग है उनके पास? अरे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी, ऐसा कोई इंजीनियर था? यही मैं कह रहा हूं। फेक तरह से आप करते हैं ना हिंदू मुसलमान, फेक माइंडसेट, चाइना की फेक वीडियो के लिए फेक 500 साल लग पिक्चर जाएगा अपने को। सर, कम आउट ऑफ दैट। सुनिए, अगर इसी तरह से वारिस भाई प्लीज लुक एट दोज विजुअल्स। अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की मजार पर फूल चढ़ा रहे हैं। आपकी यादाश्त कमजोर है। वो आप कह रहे हैं औरंगजेब से कुछ लेना देना नहीं है, फातिहा पढ़ रहे हैं, वहां चादर चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। अब औरंगजेब बीजेपी का हो गया। ये कितनी कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है आपकी। लेकिन आज आप क्लीन बोल्ड हो गए वारिस भाई। फहीम खान पर एक शब्द नहीं निकल रहा आपके मुंह से। कवर फायर देने वाली पार्टी आप हैं। नहीं दे रहे, क्यों नहीं निकलेगा? कोई भी हो, चाहे फहीम हो, चाहे कोई भी बजरंग दल का एक्टिविस्ट हो, जो भी इन्वॉल्व है राइट करने में, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं आपके चैनल ये तीसरे दिन बोलना याद आया। ये तीसरे दिन बोलना याद आया वारिस भाई। मैं पूछना चाहती हूं, पहले दिन तो आकर ओवैसी साहब ने कह दिया कि आयत वाली चादर जलाई गई थी, जिसे फडणवीस जी ने बिल्कुल कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ था। तो आग कौन लगा रहा था? आज मैं सीधा आपसे पूछ रही हूं। अब देखना नहीं चाह रहे हो, मैं क्या करूं? आग कौन लगा रहा था? ओवैसी जी क्यों कह रहे थे? कौन गया था? विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। क्या जरूरत थी प्रोटेस्ट करने की? 400 साल औरंगजेब की कब्र को आपको खोदना है, जाइए एएसआई से हटाइए। बिल्कुल, मैं सुधांशु त्रिवेदी खोद के लेके चले जाइए ना, फिर डेवलपमेंट विकास हो जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब डेवलपमेंट, अब मजार पर चादर चढ़ाने की तस्वीरें आ गई तो डेवलपमेंट याद आ गया। भटका दिया सुधांशु जी आपने तो। औरंगजेब के सपोर्ट में कोई नहीं आया था, वहां आए थे लोग। डेवलपमेंट पे भी जवाब देता हूं। रूमर्स था, सच्चाई थी, जो भी था कि एक चादर जलाई जा रही है जिसपे कोई इस्लामिक आयत लिखी है। मैं टेक्निकल और वो दोनों जवाब देता हूं। डीसीपी के पास गए, औरंगजेब की मजार जो है बैठी, बात किया, कुछ नहीं हुआ। ये बीजेपी के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट की वजह से हो गया। वारिस भाई प्लीज अलाउ हिम टू रिस्पॉन्ड, आई हैव लिटिल टाइम। सुधांशु जी। वारिस जी सुनिए, ये औरंगजेब की मजार जो है वो टेक्निकली एएसआई के कंट्रोल में थी, बट 1973 में वक्फ बोर्ड ने इस पे अपना दावा कर दिया है। एंड सेक्शन 51 ऑफ द वक्फ बोर्ड एक्ट सेज कि टिल 2/3 मेंबर्स ऑफ द वक्फ बोर्ड विथड्रॉ द क्लेम इज नॉट फॉरफीटेड। तो आज की डेट में ये डुअल ओनरशिप हो गई है। The ownership matter is not decided whether it is the ASI is having control. If ASI refutes its control, then it will be go to वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड से कहिए कि छोड़ दे अपना क्लेम, ASI के पास आएगी और उसके बाद बात हो जाएगी। दिस इज द टेक्निकल इशू। एंड ऑन द मॉरल इशू आई वुड लाइक टू आस्क, आप कह रहे हैं उखाड़ने से क्या होगा? तो आजादी के बाद भारत के तमाम चौराहों के ऊपर क्वीन विक्टोरिया और किंग जॉर्ज और बड़े बड़े वाइसरॉय की मूर्तियां क्यों उखाड़ी गई थी? मुझे जवाब चाहिए। 2 करोड़ युवाओं को इंडिया गेट पर किंग जॉर्ज V की मूर्ति वैसे तो दुर्भाग्य से 1968 तक रही, क्यों उखाड़ी गई थी? क्योंकि वो गुलामी के प्रतीक थे। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, गुलामी के प्रतीक के साथ अपने को कौन रोके रखना चाहता है? The biggest question is who's giving cover fire to the rioters? The biggest question is why would Asaduddin Owaisi say that holy texts and chadars with holy texts were burnt when the chief minister has completely denied the charge? Why were rumors being spread? And why are those who today saying that Aurangzeb is BJP's trump card? Why were they going to the grave of Aurangzeb and praying to him? That's the question we are asking tonight. Who's responsible for Nagpur flaring up? Answers awaited. Well, the mask is off. Thank you very much to Sudhanshu ji, Varis Pathan and Anand Dubey ji for joining me on the News Hour. And ladies and gentlemen,